Yes, good morning everyone. Yes, we will continue with the discussion of a solid state and the topic which was for the discussion yesterday, defects or imperfections in crystal solid or crystal lattice. So today we will continue with the same portion, defects in crystal solid or crystal lattice. What we had seen so far, cause of defect. तो डेफिनेशन देखा था इरेगुलरिटी क्या है डेफिनेशन डिफेक्ट की डेफिनेशन irregularities in the arrangement of particles in crystal lattice is what we call as defects or imperfection. Cause of defect, the major cause of defect is the crystallization process. During crystallization process many defects they get created, and the reason for defect in crystallization is if we carry out fast crystallization, then defects are going to be created in crystal lattice. Now, types of defect, there are three types: point defect, line defect and plane defect. In our syllabus, we will discuss only point defect. Point defect, irregularities of arrangement of particles at lattice points in a crystal is what we call as the point defect. There are three types of point defect. One is stoichiometry point defect, second is impurity defect, and third is non-stoichiometry point defect. We will continue with this first type, stoichiometry point defect. So stoichiometry point defect is what in this defect the ratio of atoms or ions remains unchanged. The ratio of atoms or ions remains unchanged during the creation of such defect. There are four types of stoichiometric defect. First is vacancy defect, second is self-interstitial defect, third is Schottky defect, and fourth is Frankel defect. Let us discuss this self-interstitial defect because yesterday we have covered this vacancy defect. What do we mean by vacancy defect? Vacancy defect, when some particle is missing from the regular arrangement. When some particle is missing from the regular arrangement, then vacancy get created, empty space get created, and that is what we call as vacancy defect. Now we will begin with the self-interstitial defect. So yesterday we were talking about interstitial space or interstitial vacancy. क्या है ये? Interstitial means what? The space between the regular arrangement of particle. Regular arrangement है particle के in a three-dimensional way, and during this regular arrangement some space is left behind, or some space in horizontal row or in vertical column, some space is there. So this is what the space we see, we call this as interstitial space. जैसा कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस, जब हम चेयर किसी हॉलवे या बड़ी एरिया में अरेंज करते हैं तो हम कैसे अरेंज करते हैं कि पहले तो बीच में आने जाने की लॉबी छोड़ देते हैं, और लॉबी छोड़ने के बाद में फिर चेयर्स को लगाते हैं कि मिडिल रो वाला या बीच के रो वाले को डिफिकल्टी ना हो आने जाने में, फ्रंट रो, उसके बाद वाली रो और बैक वाली रो, इन सब के बीच में हम स्पेस छोड़ते जाते हैं. तो ये जो स्पेस इन बिटवीन है अरेंजमेंट ऑफ एटम, स्पेस इन बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज नोन एज interstitial defect. Now what happens in interstitial defect? This is a stoichiometric point defect. Correct है? तो stoichiometric point defect, interstitial defect,
दिस कैन बी स्टडीड इन टू वे। फर्स्ट क्या होगा कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, some extra particle can occupy this interstitial space. Extra particle can occupy this interstitial space. एक्स्ट्रा पार्टिकल, अब एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा कहां से? बाहर से तो नहीं आएगा। एक्स्ट्रा पार्टिकल इज दिस पार्टिकल आर समवेयर एट द लेटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल, समवेयर, वहां से वो थोड़ा सा सरक के ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते। जैसे अपनी चेयर पूरी अरेंज है और बीच में अपना एक फ्रेंड आ गया तो हम एक चेयर लाके वहां पर रख देते। चेयर उसी हॉल की है, वैसा ही अरेंजमेंट है, लेकिन हाँ चल उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, एक चेयर लाके हम रख लेते, चल भाई तू यहाँ पर बैठ जा, करेक्ट है? तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट वैसे ही है। ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल आए ये भी बिलोंग करते हैं इसी क्रिस्टल लैटिस को, बट दे आर इंस्टेड ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट दे occupy interstitial space, and this is what we call as self interstitial defect. Now in this self interstitial defect, what will happen to the mass, density and volume? What will happen to mass, density and volume? मास इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल आने से मास इंक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम? वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। वैसे भी ये स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है तो एटम का रेशियो मेंटेन होना चाहिए वैसे, बट व्हाट हैपन्स हियर व्हेन दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई interstitial space, what will happen to the mass of substance? The extra particle increases its mass, तो mass क्या होगा? increase होगा। mass increase हो गया तो density भी increase हो जाएगा, but volume will remain constant, volume will remain unchanged. सो ये हो गया फर्स्ट टाइप, सेल्फ इंटरस्टिशियल स्पेस का डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप। नाउ इसी में सेकेंड टाइप देखते हैं। अब ये सेकेंड टाइप में क्या होगा कि फिर से ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा हमको। रेगुलर अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंटरस्टिशियल स्पेस sufficient interstitial space. अब ये sufficient interstitial space तो आ गई यहाँ पर, एटम्स भी रेगुलरली अरेंज है, लेकिन क्या होगा कि some atoms from the regular arrangement are missing and they are occupying the interstitial space, यानी यहां पर वैकेंसी भी क्रिएट होगी और ये एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे, इट इज मिसिंग फ्रॉम दिस रेगुलर अरेंजमेंट एंड ऑक्यूपाइंग द interstitial space, so particle is here and which creates the vacancy here. So ये second type हो गया, दोनों है interstitial space, है ना? एक में क्या हो रहा है कि extra particle आ रहा है, interstitial space occupy कर रहा, दूसरे में regular arrangement में से ही कोई particle क्या कर रहे हैं, they are missing from their regular site
इसका साइट, इसका लोकेशन क्या है, ये है, इस लोकेशन से ये मिसिंग है, तो वैकेंसी भी क्रिएट कर रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट हमको सेम, दोनों डिफेक्ट मिल रहे हैं, एक वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल। तो ये इंटरस्टिशियल पार्टिकल आ गया यहाँ पर, इंटरस्टिशियल पार्टिकल, एंड दिस इज वैकेंसी। अब इसमें क्या होगा, इसमें बोलिए, व्हाट विल हैपन टू मास, what will happen to density, what will happen to volume, all the 3 points, what will happen, चलिए बोलेंगे, mass will remain same, density will remain same, volume will also remain the same. So this is a second type of self interstitial defect. Okay, so we have covered the second type of stoichiometric point defect, and that is self stoichiometric defect. Now next point we will take into consideration is Schottky defect. तो ये Schottky defect में क्या होगा, Schottky defect। अब सबसे पहले जैसे ये नाम देखेंगे तो यहां पर एक कीवर्ड हम याद रखेंगे, आयोनिक क्रिस्टल, यहां से शुरू करने का इसको, कि Schottky defect is observed in ionic crystals or in ionic crystal lattice. And what happens in Schottky defect, both cation and anion are missing from their place, both cation and anion in pair, अगर एक cation मिस हो रहा है तो एक anion भी मिस होगा, दोनों मिस करेंगे अपने रेगुलर अरेंजमेंट से। अब जब anion और cation बोल दिया तो इनके साइज भी डिफरेंट हो जाएंगे, बिगर साइज किसका रहेगा और स्मॉलर साइज किसका होगा, anion are of bigger size and cation are of smaller size, ये भी याद रखने का है। तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट किसका, दोनों का होगा, कैटायन का भी हो रहा है और एनायन का भी हो रहा है। तो जब हम डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, ये सारे डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम तो, फिगर तो ड्रॉ करना ही होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जो एनायन है उसको बिगर साइज बताएंगे और जो कैटायन है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज होगा। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट, सही है। तो ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, कैटायन आएगा या एनायन आएगा, ये कैटायन है तो इसके ठीक नीचे में क्या आएगा, एनायन, इसके नीचे कैटायन बिगर साइज, फिर ये एनायन, देन कैटायन, उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, तो सब गलत हो गया ना। सो एनायन बिगर साइज है, कैटायन स्मॉलर साइज है, एनायन बिगर साइज है, कैटायन स्मॉलर साइज है। चलो जी, ये एनायन के नीचे स्मॉल साइज कैटायन, बिगर साइज एनायन, स्मॉल साइज कैटायन, बिगर साइज एनायन, small size cation, bigger size anion. Likewise, we will create here now bigger size anion, smaller size cation. क्या करें, प्लस साइन ज्यादा बनाने की वो होता है फट से।
बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, बिगर साइज एनायन, स्मॉलर साइज कैटायन, बिगर साइज एनायन। तो ये है आपका आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें से कैटायन और एनायन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए आप, है ना। कैटायन और एनायन ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे। अब दोनों यहाँ ऐसे पेयर में नहीं होंगे, हो सकता है यहाँ से एनायन जाए और यहाँ से कैटायन चले जाए, लेकिन एक ही क्रिस्टल में से दोनों मिसिंग रहेंगे। तो यहाँ से ये कैटायन मिस करते हैं और यहाँ से ये एनायन। वैकेंसी आ गई फिर से, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सी वैकेंसी, कैटायन, है ना। कैटायन मिसिंग है यहाँ पर, कैटायन वैकेंसी, एंड दिस विल बी anion vacancy. So, Schottky defect. Schottky defect is observed in ionic crystal, and in ionic crystal, what we see that there is missing in pair cation and anion, creating vacancy, cationic vacancy and anionic vacancy they create, and this is what we call as Schottky defect. Now क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहला तो रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, इट हैज टू बी एनायनिक। आयोनिक क्रिस्टल में ही हमको Schottky डिफेक्ट दिखेगा, वन कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, तो यहां कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर Schottky डिफेक्ट, कंडीशंस फॉर Schottky SH SCHO ऐसा होगा ना, वो कहीं तो भी H आता था, वो Schottky डिफेक्ट, कंडीशन फॉर Schottky डिफेक्ट क्या है। फर्स्ट कंडीशन, इट हैज टू बी अ हाईली आयोनिक क्रिस्टल, हाईली आयोनिक क्रिस्टल लैटिस, वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, हाँ जी, जो साइज है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, size of cation and anion should differ, should not differ, क्योंकि जो रेशियो ऑफ कैटायन है और रेशियो ऑफ एनायन है, वो रेशियो ऑफ एनायन दैट शुड रिमेन 1। तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन should not differ large. So size of cation and anion remains almost same, remains almost same. अब हमने तो यहाँ बहुत डिफरेंस दिखा दिए उनके साइज में, है ना, बट क्या है, द साइज ऑफ cation and anion should almost remains the same. थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो साइज शुड नॉट डिफर, द रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन शुड रिमेन यूनिटी, और दैट इज 1। तो इसका रेशियो 1 होना चाहिए। और एक पॉइंट है कि जो एनायंस हैं, एनायंस शुड हैव
हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? The number of atoms which are close, number of atoms which are closely in contact with a particular particle। जैसे एक पार्टिकल के आजू बाजू जो दूसरे पार्टिकल है जो उसके क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, इसी टॉपिक में पढ़े थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन क्लोज कांटेक्ट विद द पार्टिकल इन क्वेश्चन is what we call as the coordination number। तो anion का coordination number higher होना चाहिए। If these conditions are maintained, then we get a Schottky defect। तो Schottky defect के लिए these are the requirement। सबसे पहला important ये रहेगा, second, size of these particle should almost remains the same, हो गया, and coordination number should be higher। Now what are the consequences of Schottky defect? क्या इसके डिफेक्ट रहेंगे? डिफेक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे? कॉन्सिक्वेंसेस में क्या देखेंगे हम कि वैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि जितने कैटायंस हैं उतने एनायन वहां से मिसिंग रहेंगे। एक ये कॉन्सिक्वेंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दूसरे इसमें आप पढ़ेंगे जो फ्रैंकेल में, वहां पर कुछ डिफरेंस आएगा। तो न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस रिमेन्स अनचेंज। और क्या होगा? मास क्या होगा? मास, डेंसिटी, वॉल्यूम। मास कम होगा, डिक्रीजेस, डेंसिटी, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम? अनचेंज। कि चेंज हो जाएगा? नहीं होगा वॉल्यूम। अगर सिर्फ कैटायन मिसिंग होते हैं या सिर्फ एनायन मिसिंग होते तो फिर वॉल्यूम चेंज हो सकता था। अभी 10 में से एक कैटायन गया, एक एनायन, 9 बच गए। 9 में से फिर एक गया कैटायन एनायन, 8 बचेंगे। यानी उसका जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। तो यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होगी, मास डिक्रीज हो सकेगा, बट वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। तो ये हो गया शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट। अच्छा, दिस इज ऑब्जर्व इन, हाँ ये एग्जाम्पल इसमें लिखना था ना। जब इसमें साइज हमने बोला है रिमेन्स द सेम, तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते बेटा। वो एग्जाम्पल को हाईलाइट करके, एग्जाम्पल को सभी लोग याद करके रखेंगे। NaCl, KCl, AgBr, दिस विल शो शॉटकी डिफेक्ट। Next is Frankel defect। नाउ फ्रैंकेल डिफेक्ट को समझना है, तो अब यहाँ पर जो साइज है वो डिफर करेगा। तो कैटायन as we know smaller in size and anion bigger in size, यहाँ पर मिलेगा हमको।
वैसे ये एक जनरल फिनोमिना है व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम ये एक जनरल फिनोमिना है कि किसी भी एलिमेंट का अगर कैटायन बन रहा है तो वो स्मॉलर साइज होगा और एनायन अगर बन रहा है तो वो बिगर होगा। एक ये नॉर्मल टेंडेंसी है, लेकिन सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये फ्रैंकेल डिफेक्ट में वो देखेंगे हम कि कैटायन बिगर साइज, कैटायन स्मॉलर साइज के और एनायन बिगर साइज के। बिकॉज दिस फ्रैंकेल डिफेक्ट, दिस शॉर्ट की डिफेक्ट, interstitial defect and vacancy defect, they all are what type of defect? हम जो पढ़ रहे हैं ये सब, ये चारों कौन से टाइप के हैं? पॉइंट तो है ही है, पॉइंट ही पढ़ रहे हैं हम। स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट है तो यहां पर भी हमें जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस का बनाना है, इसमें बिगर साइज एनायन रहेगा, स्मॉलर साइज कैटायन लेंगे। और होता क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट को फ्रैंकली मैं बता दूं आपको, तो इसमें जो स्मॉलर साइज कैटायन है, ये स्मॉलर साइज कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते। दैट इज व्हाट द फ्रैंकेल डिफेक्ट, दैट दे ऑक्यूपाई द interstitial space and also create the vacancy। कहीं से तो मूव करेंगे वो, तो वो मूव करते हैं अपनी रेगुलर पोजीशन से और ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस को। और इंटरस्टिशियल स्पेस को जब ऑक्यूपाई करेंगे तो कैटायन ही करेंगे, क्योंकि उनका जो साइज है वो स्मॉल है। एनायन विल नॉट स्मॉल साइज। हाँ जी, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो स्मॉल साइज कैटायन है, दे ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल स्पेस, सो दे मूव टू इंटरस्टिशियल स्पेस। और किसको हटा दे, यहां इसको एलिमिनेट कर, इंटरस्टिशियल स्पेस एंड क्रिएट सम वैकेंसी हियर। तो ये वैकेंसी क्रिएट करेंगे एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। So this is Frankel defect, that this is what occupying the interstitial space. So cation, they occupy interstitial space and also create vacancy defect. Vacancy defect. यहां भी वैकेंसी डिफेक्ट। सो दिस इज व्हाट द फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसमें भी कंडीशन में पहली कंडीशन कॉमन रहने वाली है, आयोनिक। फर्स्ट इज व्हाट, आयोनिक, हाईली आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। सो क्रिस्टल लैटिस हैज टू बी आयोनिक। और क्या होगा, the size of cation and anion differ, size of anion and cation differ, और coordination number is smaller।
coordination number is smaller. ये 3 कंडीशन रहेगी तो फ्रैंकेल डिफेक्ट. तो इन शॉर्ट याद अपने को यही रखना है कि फ्रैंकेल डिफेक्ट में आयोनिक क्रिस्टल रहेगा, लेकिन स्मॉल साइज कैटायन अपने रेगुलर अरेंजमेंट से हटके कहाँ चले जाएंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस में. एंड दे क्रिएट 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट, one vacancy defect, another is interstitial defect. On the other hand, Schottky में क्या होता है? Schottky में क्या होता है कि cation and anion both are missing in pair from their original arrangement site. जो इनकी अरेंजमेंट की साइट है, जो लोकेशन है, वहां से पेयर में वो मिसिंग रहते हैं एंड क्रिएट कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसी. तो इसमें दोनों भी डिफेक्ट क्रिएट हो गए फ्रैंकेल में. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बोथ क्रिएटेड इन दिस अरेंजमेंट. और साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन मस्ट डिफर. ओनली कैटायन कैन मूव फ्रॉम देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस. चलिए अब इसमें फिर बतला दीजिए क्या फर्क पड़ेगा मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में. व्हाट विल हैपन टू मास? सेम रहेगा मास, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहीं का एटम कहीं और दूसरी जगह पे. नंबर ऑफ एटम तो उतने ही है, साइज भी वही रहने वाला है. तो मास रिमेन्स सेम, density remains same, volume also remains same. इसके भी एग्जाम्पल हाईलाइट करना है क्योंकि पार्टिकल साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड. So this is Frankel defect. So smaller size cation get displaced from their regular position, creating vacancy defect is what we call as Frankel defect. It is a combination of 2 defects, vacancy as well as interstitial. अब नेक्स्ट क्या है फिर? अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है ना. फर्स्ट हो गया हमारा स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, पॉइंट डिफेक्ट का फर्स्ट. जरा एक बार बोल देंगे कौन कौन से आ गए. पॉइंट डिफेक्ट का 3 टाइप्स है: स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइचोमेट्रिक. स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के 4 टाइप अभी भी यहाँ लिखे हैं बोर्ड पे, एक बार जरा रीड कर लीजिए. फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इसमें 2 पॉइंट हमने देखा था सेल्फ इंटरस्टिशियल में कि एक क्या हो रहा था कि एक्स्ट्रा पोजीशन, एक्स्ट्रा एटम आके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, और दूसरे इसमें क्या हो रहा था? यस, वो दोनों डिफेक्ट आ रहे थे सेकंड वाले इसमें. तो सेल्फ इंटरस्टिशियल 2 टाइप से. देन शॉर्टकी यहाँ पर है, एटम क्रिस्टल जो होना चाहिए आयनिक और साइज जो होना चाहिए कैटायन एनायन के, वो ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए. रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो ऑलमोस्ट 1 आना चाहिए. एंड एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट. तो शॉर्टकी के एग्जाम्पल NaCl, KCl and AgBr. Frankel defect, displacement of small size cation to the interstitial space. Frankel में small size cation they displace from their regular position
and occupy interstitial space and creating two type of defect. One is interstitial defect, another is vacancy defect. And condition, ionic crystal तो होना चाहिए, but size of anion and cation should differ and coordination number must be smaller. There is no change in mass, density and volume. Example, zinc sulfide, calcium fluoride, silver chloride, silver iodide, silver bromide. So four type of self interstitial defect हो गया, 4 types of stoichiometric defect हो गया, है ना? Stoichiometric point defect 4 types के हो गए. Now we'll move to impurity defect. अब impurity defect ज्यादा interesting है. Impurity defect, कुछ impurity unknowingly आ जाती है और कुछ impurities को with intention we add to get a better quality of crystal. So better quality of crystalline solid के लिए impurities को कई बार हम add भी करते हैं. तो second type हो रहा है ये impurity defect. Impurity defect. इसमें होता क्या है कि some foreign, क्या बात है, some foreign atoms or particles occupy the position of host atom. Occupy the position of host atom. कि जो ओरिजिनल एटम है उसकी प्लेस पे कुछ बाहर से दूसरे एटम्स को जब हम ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी मीन्स बाहर से ही कुछ आएगा, जो अपना नेचुरल रहेगा वो तो एक ही टाइप के सब एटम होने चाहिए. अब अगर उसमें कुछ बाहर के दूसरे एटम हम ऐड करेंगे तो वो रहेगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. ठीक है. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये भी दो टाइप का है, एक है सब्स्टिट्यूशनल और दूसरा है क्या है, एक है सब्स्टिट्यूशनल. सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. And the second is interstitial impurity defect. ये कहाँ interstitial बार बार आते जा रहा है. Interstitial impurity defect. Stoichiometry में भी था interstitial, यहाँ भी है substitutional impurity defect and interstitial impurity defect. This is more interesting, more usefulness of this kind of defect, substitutional impurity defect. इसमें क्या होगा? Substitutional impurity defect, the foreign atom of the same size. The foreign atom of the same size is substituted in place of host atom. Okay? Recording भी off.